Good morning, lovely kids. I hope you all are fit, fine, and healthy. Dear students, we are missing you a lot. आपको भी अपने स्कूल के बच्चों याद तो आती होगी, मुझे मालूम है आप अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं, पर आपको घर पर रहकर ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, कोरोना से भी अपने आप को बचाना है और अपनी स्टडी को भी दिल लगा के करना है। तो जो भी आपके पास वीडियो आती है उसे अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और उसमें जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया है टीचर्स ने वैसे ही अपना काम कीजिए। तो सबसे पहले हम दिन की शुरुआत हमेशा प्रेयर के साथ करते हैं। सो बी रेडी चिल्ड्रन फॉर मॉर्निंग प्रेयर। फोल्ड योर हैंड्स। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बच्चों, आपने लेसन 12 को प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ लिया है और उसकी एक्सरसाइज और एक्टिविटी भी की है, बट स्टिल द एनिमेशन ऑफ दिस चैप्टर इज पेंडिंग। सो लेट अस एंजॉय द एनिमेशन ऑफ दिस चैप्टर। Fun and play. It is very necessary to have fun. It is because continuous work makes us dull. The different ways of recreation provide freshness and fun to us. We play different games, visit fair, circus, zoo, exhibition, etc. to have fun. You might also be playing some kind of game at home. Also, there is a games period in your school timetable. The games are of two main types, indoor and outdoor games. The games that we play inside our home are called indoor games. Chess, Ludo, snakes and ladders, carom, Monopoly, Scrabble, cards, etc. are some common indoor games. The games that we play outside our home in the fields are called outdoor games. Football, cricket, hockey, lawn tennis, etc. are some common outdoor games. Besides these, there are some modern games that are played on the television and computer screens. These are called video games. The outdoor games provide us recreation as well as exercise of the body. This is because we run or jump while playing these games. This makes our body parts move and hence it improves the rate of blood circulation. This keeps us more active and fresh. It is not good to play more video games. Playing video games for long duration can harm our eyes, so we should avoid playing too much video games. Rules to play games. Every game has certain rules. These rules should be well known and should be followed honestly. We should not cheat our playmates. Playing fair game provides us
with real recreation and enjoyment. Cheating in games while playing creates an unhealthy situation. This results in arguments and sometimes clashing of players. So, we should always play in the spirit of the game. Fun at fair. You might have been to a fair. What did you like the most at the fair? Fairs are a good means of recreation. These are held on several occasions such as Dashera, Diwali, Holi, Durga Puja, Eid, etc. People from all around go to fairs to enjoy and also to purchase various useful things. There are several shops in a fair. There are also fun rides, toy trains and swings for children in a fair. Children enjoy these the most. People and children also enjoy eating different food items, sweets, etc. at fairs. Children also buy different kinds of toys and games. Fun at circus. A circus is a group of skilled acrobats and trained animals. These entertain people with fascinating tricks and funny activities. Circus is always held in big tents installed in a big ground. There is a ring in the center of the tent. All the acrobatic tricks and activities are performed in the ring. All around the ring, there is seating arrangement for the people who come to see the circus. In the circus, the acrobats and even some animals are dressed in colorful and shining dresses. The acrobats jump and show different kinds of somersaults in the air. They also ride on unicycles, a cycle with only one wheel, and show the acts of balancing their body in different ways. The jokers and clowns make people laugh with their silly acts. Different animals perform their tricks they are trained in. Elephants play cricket with a bat in their trunk. They also walk on their two hind legs and dance to the beats of drums. There are trapeze artists who show their thrilling skills in the mid-air. They swing high up on the swinging swings and show their skillful tricks while swinging. It is thus very interesting and exciting to watch the acts and tricks of all the artists in a circus. It is a great fun for children to see the circus. Today we are going to start new chapter Paying for Travel. ये लेसन 13 है और इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो इसमें बच्चों आज हम ये 2 पेजेस को समझेंगे। पेज 78 पेइंग फॉर ट्रैवल लेसन 13 का और पेज 79। तो आप अपनी बुक को ओपन करो पेज 78 पर और देखो पेज 78 पे आपको ये वार्म अप एक्टिविटी मिलेगी। खोलो अपनी बुक और अच्छे से समझो इसको। विच ऑफ दीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। आप कहीं पर भी जब जाते हो तो आपको क्या चाहिए? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल चाहिए, कन्वींस चाहिए, जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो ये कुछ व्हीकल्स हैं यहाँ पे। आपको बताना है कि इसमें कौन सा व्हीकल एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट को कौन सा व्हीकल बचाता है। तो फर्स्ट है बैटरी ऑपरेटेड मोपेड। ये जो मोपेड है ये बैटरी से चलती है। पेट्रोलियम, इसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये बस है और ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ये हमारी कार है। तो अब बताइए कौन सा एनवायरनमेंट को बचाएगा? यस ऑफ कोर्स बैटरी ऑपरेटेड, जो व्हीकल बैटरी से चलता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर हम बस में जाते हैं तब भी हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब स्कूल का एग्जाम्पल हो, जैसे आप स्कूल जब आते थे पहले तो एक साथ कितने बच्चे बस से स्कूल में आते थे। तो अगर सभी पेरेंट्स कार से छोड़ने आते तो कितना फ्यूल लगता, तो हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा गंदा होता। तो ये व्हीकल बैटरी ऑपरेटेड मोपेड और बस जो है ये जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। These are the new words. First word is traveling. TRAVELLING.
Traveling means to go from one place to another. यात्रा जिसे हम कहते हैं. Second word reservation. 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 Withholding. किसी चीज को आने वाले समय के लिए पहले से ही सुरक्षित कर लेना, रिजर्व कर लेना. Passengers. 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 Passengers means travelers. जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें हम passengers कहते हैं. Convenience. 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 Convenience means the state of being able to proceed with something without difficulty. किसी भी काम को करने के लिए जब हम बड़े आरामदायक तरीके से बिना किसी मुश्किल के उस काम को करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैंने वो काम बड़ी कन्वीनियंटली किया है. प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे बच्चों आपको प्राइवेट वर्ड से ही क्लियर होना चाहिए. प्राइवेट का मतलब अपना, जो हमारी अपनी संपत्ति होती है, जो किसी और का नहीं होता. तो हमें अपने प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या फैसिलिटी है. एक तो हम जब इसमें जाते हैं तो क्या आप मम्मी पापा के साथ कार में या स्कूटर पे जाते हो तब क्या आपको टिकट लेना पड़ता है. नो, हमें इसके लिए कोई भी टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होती. एंड these vehicles are owned by us. और ये व्हीकल्स हमारी अपनी संपत्ति होती है, ये किसी और की नहीं होती, जो आप अपने पैसे से खरीदते हैं. और इसमें क्या एग्जांपल्स हैं. बाइसिकल जैसे आपकी है, स्कूटर है, कार है, मोटरसाइकिल है. ऑल दीज आर प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वर्ड पब्लिक से ही पता चलता है लोगों की, सबकी मिली हुई, मिली जुली. वी हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग. बच्चों जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो आपको मालूम है बस में जाते हो आपको टिकट लेना पड़ता है, ट्रेन में भी टिकट की जरूरत होती है. इन द सेम वे बाय एयरवेज इफ यू आर गोइंग यू नीड टू बाय टिकट्स यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपल. और आपको ये मालूम है इन ट्रांसपोर्ट को सभी लोग, बहुत सारे लोग यूज करते हैं जिनके पास अपने प्राइवेट व्हीकल्स नहीं होते. पर कई बार प्राइवेट व्हीकल्स तो होते हैं और हमें दूर जाना है तो इसके लिए हम ट्रेन या बाय एयरवेज वी कैन मूव. और एग्जांपल्स में बसेस हो सकती हैं, ट्रेन्स, एरोप्लेन, शिप्स. ऑल दीज आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. बच्चों जब हम ट्रैवलिंग करते हैं बस से, उसमें आपने भी कभी ट्रैवलिंग की होगी जरूर बस से. आपने देखा होगा ड्राइवर तो बस चलाता है और आपको बस के अंदर टिकट खरीदना पड़ता है. तो वो टिकट आपको कौन सेल करता है, कौन बेचता है टिकट वहाँ पर? कंडक्टर. तो कंडक्टर सेल्स टिकट्स इन अ बस. इन द सेम वे व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो या बाय एयर कहीं जाते हो, आपने देखा है आपको इसकी इन जर्नी की टिकट्स को पहले ही परचेज करना पड़ता है. बाय ट्रेन वी हैव टू परचेज जर्नी टिकट्स इन एडवांस फ्रॉम द टिकट विंडो. हमें टिकट विंडो से पहले ही अपने टिकट्स को खरीदना होगा. ट्रेन में टिकट्स नहीं खरीदी जाती, ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट को लेते हैं. ट्रेन में कौन होते हैं? TTE, जिसे हम ट्रेन टिकट एग्जामिनर भी कहते हैं. जो टिकट हमने एडवांस में ली है तो हमसे ट्रेन में कभी भी TTE आकर उन टिकट्स को चेक कर सकता है कि क्या आपके पास ट्रैवलिंग के लिए प्रॉपर टिकट है या नहीं. अब बताओ जब हम इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जाते हैं तो हमने क्या खरीदा ये आपको पता चल गया है, टिकट परचेज की है. तो अब इस टिकट को
परचेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो हमें मनी पे करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है और हमें टिकट मिल जाती है। किड्स, तो अब हम इंडियन करेंसी के बारे में और ज़्यादा समझते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। हमारी जो इंडियन करेंसी है आपको मालूम है, इसमें नोट होते हैं, रुपए होते हैं और कॉइन्स, सिक्के होते हैं। मनी इज अवेलेबल इन डिफरेंट वैल्यूज एंड फॉर्म। और जो पैसा हमारे मार्केट में है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत भी अलग अलग है और फॉर्म वो अलग अलग टाइप का है। बच्चों ये देखो, अब यहाँ पे क्या है? ये कॉइन्स हैं मेरे पास। ये 1 रुपी कॉइन है और ये 2 रुपी का कॉइन है। दिस इज 5 रुपी कॉइन एंड दिस इज 10 रुपी कॉइन। और अब क्या है? ये जो इनके ऊपर 1, 2, 5, 10 लिखा हुआ है, ये क्या है? इनकी कीमत है। ये इतने वैल्यू के कॉइन्स हैं, आप मार्केट से इतनी वैल्यू का सामान खरीद सकते हो। अब देखो ये कुछ कॉइन्स हैं, पर ये कॉइन्स कौन से हैं बच्चों? जिस समय आपके दादा या उनके पेरेंट्स यहाँ रहते होंगे। ये देखो यहाँ पे ये 3 पैसे हैं, ये 3 पैसे का सिक्का है, ये 5 पैसे का सिक्का है, ये 10 पैसे हैं, ये 20 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं। ये पहले इतने कम वैल्यू के सिक्के भी मार्केट में चलते थे क्योंकि सामान बहुत सस्ता होता था, इतनी महंगाई नहीं है। पर अब ये मार्केट में कॉइन्स नहीं चलते हैं, अब इनकी जगह ज़्यादा वैल्यू के कॉइन्स मार्केट में आ गए हैं। अब देखो ये क्या है मेरे पास? करेंसी नोट्स, रुपए पेपर के हैं ये हमारे। ये देखो ये 10 रुपी नोट है, ये 50 रुपी का नोट है। ये देखो यहाँ पे इसकी ये वैल्यू है। और ये यस बताइए, ये 100 रुपी का नोट है। और ये 200 रुपी, ये 500 रुपी और ये 2000 रुपीज़। ये बच्चों क्या है? जो ये लिखा होता है ये इसकी वैल्यू लिखी होती है, कीमत लिखी होती है। और आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जितने भी नोट हैं उनका साइज अलग है, उनका कलर अलग है। यस, तो ये हमारे करेंसी नोट हैं। बच्चों तो आप देखो पेज 81 पे आपकी बुक में ई पार्ट पे एक और एक्टिविटी है इसी से रिलेटेड। यहाँ पे आपको 500 का नोट दिखाया हुआ है और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुज सिग्नेचर कैन बी सीन ऑन द नोट, कि नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं। ये देखो मैंने ये नोट लिया है, इस पे गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनके साइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच फेमस पर्सनैलिटी डू यू सी, आप कौन सी फेमस पर्सनैलिटी देखते हो इस नोट पे? यस, बापू, महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द बैंक मेंशन्ड, कौन सा बैंक मेंशन है इस पे? यस, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, विच फेमस मोन्यूमेंट डू यू सी, कौन सा फेमस मोन्यूमेंट आप देखते हो इस नोट पे? ये देखो मैंने टर्न किया है नोट। यस, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट का है ये और ये न्यू दिल्ली में है, आपको मालूम है। बी रेडी फॉर रीडिंग नाउ पेज 78. First paragraph I am going to read. As times have changed, we use various means of transport to move from one place to another. There are different means of transport. हम कई तरह के means of transport यूज़ करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, जो लैंड पे व्हीकल्स चलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, जब हम वाटर वेज की हेल्प से कहीं जा सकें। एंड एयर ट्रांसपोर्ट, या फिर जो एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो एरोप्लेन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो बाय एयर हम कहीं मूव करते हैं। वी यूज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक स्कूटर्स, कार्स,
bicycles, motorcycles, etc. for personal convenience. These are called private means of transport. We do not need tickets for traveling in vehicles owned by us. Owned मतलब जो हमारे अपने व्हीकल्स हैं, पर्सनल व्हीकल हैं, जिन व्हीकल्स को हमने खरीदा है, हमें उसके लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती. On the other hand, means of transport like buses, trains, etc. are used by a number of people. Number of people means बहुत सारे लोग इन means of transport को use करते हैं. These means are called public means of transport. We have to pay for traveling in public transport. और अगर हम बस में, ट्रेन में जाते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवलिंग के लिए पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं. मीन्स हमें टिकट परचेज करना पड़ेगा. नेक्स्ट पेज 79. टीचर. अब टीचर क्या पूछ रही है स्टूडेंट से? हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय अ बस? हु सेल्स टिकट्स इन अ बस? कि जब आप बस में जाते हैं तो वहाँ पे टिकट कौन देता है? तो रुचिका आंसर देती है मैम का, यस मैम, देयर इज़ अ कंडक्टर इन एवरी बस. कि हर एक बस में कौन होता है? कंडक्टर. ही सेल्स टिकट्स टू द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन द बस. पैसेंजर्स कौन होते हैं बच्चों? जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं. टीचर. हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन? कि क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है? टीचर इज आस्किंग फ्रॉम स्टूडेंट्स. हु चेक्स द टिकट्स इन अ ट्रेन? When we have to travel by a train, we have to purchase a journey ticket in advance from the ticket window. We have to show this ticket to the ticket checker called TTE. और फुल फॉर्म क्या है TT क्या? ट्रेन टिकट एग्जामिनर. TTE क्या है फुल फॉर्म? Train ticket examiner. When he asks us to do so. Thus, when we use public transport, we buy tickets and pay money for them. Money is available in different values and forms. Students, अब इस स्लाइड में देखो बहुत सारी करेंसी दी हुई हैं. कुछ नोट हैं, करेंसी नोट हैं और कुछ कॉइन्स हैं. ये वो हैं जो हम आजकल समय में यूज़ कर रहे हैं. और नीचे जो कॉइन्स बने हुए हैं वो कॉइन्स हैं जो बहुत समय पहले यूज़ किए जाते थे और आजकल हम इनको यूज़ नहीं करते. अर्लियर थिंग्स वर वेरी चीपर, सो कॉइन्स ऑफ लेसर वैल्यूज़ वर आल्सो अवेलेबल. Also they were different from the coins we use today. आपको पता है जो ऊपर वाले कॉइन्स हैं वो आजकल आप यूज़ करते हो. 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी. आपने ये सब एक्टिविटी में भी देखे हैं. और जो नीचे वाले कॉइन हैं 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ये कॉइन्स अब यूज़ नहीं हो रहे हैं. सो दीज कॉइन्स आर नो लॉन्गर इन यूज़. इस पार्ट 1 में आपकी एक्सरसाइज क्या दी है मैंने, ध्यान से समझोगे. राइट डाउन न्यू वर्ड्स. जो मैंने आपको न्यू वर्ड्स करवाए हैं वो अपनी EVS नोटबुक में उनको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखोगे. और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट एनी 2 प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज टू गो एनीवेयर इन द सिटी. अगर आप अपने शहर में कहीं पर भी जा रहे हो तो कौन से 2 प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करोगे? बिलीव यू कैन एंड यू विल. बच्चों, आप हर कार्य कर सकते हो. कब करोगे? जब आपको ये विश्वास होगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ. तो विश्वास रखिए, बिलीव करो अपने ऊपर और अपने काम को दिल लगाकर मेहनत से करो.
स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से बचाइए अपने आप को, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छी हेल्दी फूड को खाइए और घर से ही बैठकर सुंदर राइटिंग में अच्छे से समझ के अपना होमवर्क टीचर्स को सेंड कीजिए। चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।